Hello students, welcome to Concept Sutra. In today's class, we'll be discussing the exercise questions of the chapter Mindful Eating. ठीक है, हमने भी पिछले दो लेक्चर्स में वी हैव कवर द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर. अब इस लेक्चर में हम जो बैक एक्सरसाइजेज या क्वेश्चंस हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट with the questions. Okay, so the very first question is pick the odd one out and give reasons. ज्वार, बाजरा, रागी, चना, इनमें से odd कौन सा है? तो we all know कि ज्वार, बाजरा एंड रागी ये क्या है? ये मिलेट्स हैं. So चना is the odd one out because it is a protein source. चना क्या है? आपका प्रोटीन का सोर्स है. इट इज़ नॉट अ मिलेट. सेकेंड, किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम, सोयाबीन, राइस. सो ऑब्वियसली राइस इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस. वाई? बिकॉज राइस इज अ सोर्स ऑफ कार्ब. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न culinary practices in India. जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में हमने देखा था दैट वी वर यूजिंग चूल्हा, वी वर यूजिंग सिलबट्टा. Okay, and in the modern practices we use a blender, a mixer, and we have a gas stove. The cooking practices are called culinary practices. They have changed over time. Earlier most cooking was done using chulha and spices were grinded using a silbatta. Modern practices use gas stoves, electric grinders, and other kitchen appliances. These changes are due to technological advancement, improved transportation and convenience. So this is your answer to the second question. Let's move on to the third question now. Okay, let me just place it here. Now the third question says, a teacher says that good food may act as a medicine. Ravi is curious to know about this statement and has some questions for his teachers. List at least 2 questions that he can ask. Okay, so teacher, what is the teacher saying? The teacher is saying that good food can act as a medicine. एक अच्छा खाना जो है वो एक दवा का काम करता है. तो इस पर हम कौन से 2 तरह के क्वेश्चंस जो हैं पुट ऑन कर सकते हैं जो कि रवि अपनी टीचर से पूछ सकता है. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इंडिविजुअल हेल्थ डिपेंड्स ऑन सोशल एंड मेंटल वेलबींग. हर एक इंसान की जो इंडिविजुअल हेल्थ है वो उसकी सोशल और मेंटल वेलबींग पर कैसे डिपेंड करती है? बहुत फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. अगर आप फिट नहीं हो, अगर आप मेंटली आप अनहैप्पी हो, यू आर इन अ स्टेट ऑफ रेस्टलेसनेस, तो फिर डेफिनेटली आपकी हेल्थ भी जो है कहीं ना कहीं डिटोरिएट करेगी. सेकेंड क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इज जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट. मीना इज सफरिंग फ्रॉम कॉलेरा. इट इज़ लाइकली दैट द चिल्ड्रन सिटिंग अराउंड हर विल बी एक्सपोज टू द इन्फेक्शन. Okay. Now, the fourth question, not all delicious foods are necessarily healthy, while not all nutritious foods are always enjoyable. हमेशा हर डिलीशियस खाना, हर स्वादिष्ट खाना जो है वो ना तो हेल्दी होता है और ना ही उसमें न्यूट्रिशन होना ज़रूरी है. तो इस पर व्हाट कैन वी से? सो ऑब्वियसली हम जो पिज़्ज़ा बर्गर कंज्यूम करते हैं, नूडल्स कंज्यूम करते हैं, सो इट इज़ वेरी डिलीशियस, लेकिन उसका न्यूट्रिशनल कंटेंट जो है वो बहुत ही कम होता है. न्यूट्रिशन उसमें बहुत कम होते हैं. Definitely, what will be the answer? Delicious food is not always healthy. Like burger, pizza, chaat, potato chips, they are tasty but not nutritious. These foods they contain refined flour, maida, spices, lots of oil, which is not good for health, and they also have high salt content as well. On the other hand, nutritional food may not always be delicious. जो हमारी हेल्थ के लिए जो फ़ायदेमंद खाना होता है वो हमेशा हेल्दी नहीं होता है. जस्ट लाइक दलिया, ओट्स, पॉरेज, ये सब चीज़ें क्या हैं? दे टेस्ट लाइक इट्स माइल्डली इट्स गुड बट इट इज़ नॉट टू मच डिलीशियस. तो बट दे आर वेरी न्यूट्रिशियस. Like boiled vegetables, pulses, leafy vegetables, which are not always tasty but are very good for health. These foods they contain important nutrients which help us to maintain our body strong and healthy. So I hope you are able to understand what the question is saying. Okay. Now the next question says Medu does not eat vegetables but enjoys biscuits. This is noodles and white bread.
He often has stomach ache and constipation. What changes should he make in his diet to get rid of these problems? तो मेरू क्या करता है, वो वेजिटेबल सब्जियां नहीं खाता है, वो क्या खाता है, वो नूडल्स खाता है, बिस्किट एंड वाइट ब्रेड. ओके और जिसकी वजह से क्या होता है, उसे बहुत ही फ्रिक्वेंटली स्टमक एक होता है, पेट दर्द होता है एंड कॉन्स्टिपेशन होता है, डिफ़िकल्टी इन एक्सक्रीटिंग आउट द वेस्ट. तो हमें क्या क्या चेंजेस करने चाहिए उसकी डाइट में. तो सबसे पहला चेंज क्या है, बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन roughage should be there. Roughage is an essential component of our food. It helps our body get rid of undigested food and ensures a smooth passage of stools. अगर आपके खाने में अगर एक प्रॉपर डाइटरी फाइबर नहीं है जिससे आपका बॉडी का स्टूल, आपकी बॉडी का एक्सक्रीटा जो है वो अगर पास आउट नहीं हो रहा है प्रॉपरली, तो फिर क्या होगा, definitely you're going to feel bloating, gas, acidity, constipations, a lot of issues will be there and somehow your stomach health will start deteriorating. Okay, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, we need to add a proper roughage. हमें फाइबर्स, डाइटरी फाइबर्स भी जो है खाने में ऐड करने पड़ेंगे. नाउ सिंस ही सफरिंग फ्रॉम स्टमक एक एंड कॉन्स्टिपेशंस, तो ये जो कुछ भी खाना खा रहा है, वाइट ब्रेड स्पेशली, ये आपके कॉन्स्टिपेशन का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण होता है. ठीक है, ऑल द फूड्स जो कहीं ना कहीं मैदे से, व्हीट फ्लावर से बनते हैं, रिफाइंड व्हीट फ्लावर, तो ये सारे कहीं ना कहीं रफेज जो है लैक करते हैं, उसमें होता नहीं है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है. तो हमें क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट, होल ग्रेन्स, पल्सेस, ये सब हमें उसकी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए ताकि उसे जो प्रॉब्लम हो रही है वो उस दिक्कत को फेस ना करे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशमा हैज़ ट्रबल सीइंग थिंग्स इन डिम लाइट. द डॉक्टर टेस्टेड हर आई साइट. डिम लाइट में चीज़ें नहीं दिखाई दे रही, मतलब डेफिनेटली देयर इज़ लैक ऑफ विच वाइटामिन, डेफिनेटली इट्स अ लैक ऑफ वाइटामिन ए, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, नाइट ब्लाइंडनेस हो रही है, रात को नहीं दिखाई दे रहा है. ओके, द डॉक्टर tested her eyesight and prescribed a particular vitamin supplement. He also advised her to include a few food items in her diet. तो कौन सी deficiency disease हो गई है, she is suffering from night blindness. Again the spelling has to be corrected here, it is night blindness. And which food component may be lacking, definitely vitamin A is lacking in her diet. और कौन कौन से food items में होता है, so milk, carrot, papaya, spinach, इन सब में क्या होता है, विटामिन ए. जो आपका बुक में जो चार्ट गिवन है जिसमें सारे विटामिन्स के सिम्टम्स, कॉजेस और फूड्स दिए हैं, यू नीड टू लर्न इट बाय हार्ट, क्योंकि उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग, कैन फ्रूट जूस, फ्रेश फ्रूट जूस एंड फ्रेश फ्रूट. हमें क्या दिया है, एक बॉटल्ड कैन प्रोसेस्ड फ्रूट जूस मिला है, एक हमें फ्रेश फ्रूट जूस मिला है, तुरंत हमने फ्रेश जूस बनाया है फ्रूट का, और एक हमें ताज़ा फल मिला है, फ्रेश फ्रूट. तो इनमें से हमें कौन सा प्रेफर करना चाहिए और क्यों. पहली चीज़, कैंड फ्रूट जूस, इट में कंटेन एडेड शुगर, कलर्स और फ्लेवर्स, ये हो सकता है. फ्रेश फ्रूट जूस, अगेन इट इज़ अ वेरी कंसनट्रेटेड फॉर्म. ठीक है, तो हमें क्या कंज्यूम करना चाहिए, फ्रेश फ्रूट. Why? Because it contains fiber and more nutrients as compared to juices which have sugars and preservatives. और ये जो आपका फ्रेश फ्रूट होता है, फ्रेश फ्रूट जूस होता है, इसकी कंसनट्रेशन जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Gaurav got a fracture in his leg. His doctor aligned the bones and put on a plaster. ठीक है, क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया. Doctor also gave him calcium tablets. ठीक है, on the second visit the doctor gave him vitamin D syrup along with calcium tablets. Why did the doctor give calcium tablets to Gaurav? Second question, on the second visit why did the doctor give vitamin D syrup along with the calcium tablets? So let's see the first question answer. The doctor gave calcium tablets to Gaurav because calcium plays a crucial role in bone health. क्योंकि उसकी हड्डियों में फ्रैक्चर हुआ है, तो हील करने के लिए, बोन हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसे सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, कैल्शियम की. तो व्हेन अ बोन इज़ फ्रैक्चर्ड, कैल्शियम एक्ट्स एज द एसेंशियल पार्ट ऑफ बोन हीलिंग. सेकेंड क्वेश्चन कि विटामिन डी का सिरप भी क्यों इंक्लूड कर दिया नेक्स्ट विजिट पे. वाई,
बिकॉज विटामिन डी क्या करता है, वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में बहुत काम करता है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. यू कैन प्लीज़ जस्ट स्टार मार्केट. ओके, क्या करता है विटामिन डी? कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में काम करता है. ओके, नेक्स्ट, one question that arises about the choices made by the doctor in giving the medicine is, what does it says? It says, what question arises in your mind about the choices that the doctor made? So what is the question arises? That how long does Gaurav need to continue taking the calcium tablets and vitamin D syrup? अगर डॉक्टर ने, अगर आपको कोई भी चीज़, अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो, तो अगर डॉक्टर आपको कोई भी दवा देता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है आपके दिमाग में कि how long will the medicines continue, how long will the treatment continue? So the same question was there with Gaurav as well. Next question, number 9. Sugar is an example of carbohydrates. Sugar is tested with iodine solution but it does not change to blue black color. What can be a possible reason? कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल क्या है? शुगर. शुगर को हमने किसे टेस्ट किया? आयोडीन सोल्यूशन. बेसिकली हम क्या कर रहे थे? हम एक स्टार्च टेस्ट कर रहे थे. ये क्वेश्चन किस पार्ट का है? द एक्सपेरिमेंट इट वाज गिवन इन योर बुक स्टार्च टेस्ट का है. तो हम क्या कर रहे थे? स्टार्च टेस्ट कर रहे थे. आयोडीन से जो भी हम स्टार्च टेस्ट करते हैं तो हमारा सोल्यूशन क्या, कौन से कलर में टर्न होता है? ब्लू ब्लैक. ओके, नाउ all carbohydrates do not give blue black color with iodine solution. Only reason, this is the only starch which gives blue black color with iodine solution. Though sugar is a carbohydrate but it is not a starch. हमने ये चीज़ पढ़ी जब मैं आपको स्टार्च पढ़ा रही थी कि कुछ स्टार्च, some starch are carbohydrates. कुछ स्टार्च होते हैं, वो क्या होते हैं? कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं जो आपके स्टार्च बनते हैं. बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं सबके सब स्टार्च ही हों. ठीक है, तो शुगर, नो डाउट इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट बट इट इज़ नॉट अ स्टार्च. दैट इज़ वाई ऑन डूइंग द आयोडीन टेस्ट, दैट इज़ अ स्टार्च टेस्ट, इट डिड नॉट टर्न टू ब्लू ब्लैक कलर. ओके, सो आई होप यू गॉट द आंसर टू द क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, व्हाट डू यू थिंक ऑफ रमन्स स्टेटमेंट, all starches are carbohydrates but not all carbohydrates are starches? So describe the activity. Again this is a question from starch test. ठीक है, now what does it says? Raman's statement is correct. To test this, perform the iodine solution. जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें से कुछ स्टार्च होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन सारे कार्ब्स जो हैं वो स्टार्च नहीं होते हैं. और ये किस वजह से हम, और इसको हम टेस्ट कैसे करते हैं? इसको हम टेस्ट करते हैं बाय द स्टार्च टेस्ट, दैट इज़ बाय द आयोडीन सोल्यूशन. टू परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट ऑन डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स लाइक स्टार्च एंड शुगर, ओनली राइस विल टर्न ब्लू ब्लैक, कन्फर्मिंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, देयरफॉर कन्फर्मिंग द फैक्ट स्टार्चेज आर कार्ब्स बट नॉट. तो यहाँ से हमको एग्जाम्पल भी मिल गया. What did we get here? That rice क्या है हमारा? rice is a starch. So we got to know that rice is a starch as well as a carbohydrate. Okay, next question. While using iodine in the laboratory, a few drops of iodine fell. It is written fell. A few drops of iodine fell on Mishti's socks and a few fell on her teacher's sari. तो क्या कर रहे थे? लेबोरेटरी में आयोडीन के साथ हम टेस्ट कर रहे थे. तो क्या हुआ? थोड़ा आयोडीन किस पर गिरा? सॉक्स पे गिरा, और थोड़ा गिरा साड़ी पे. The drops of iodine on the sari turned blue black while the color of the socks did not change. What can be the possible reason? तो सबसे what is given? Teacher's sari contains starch, therefore the drops of the iodine turn blue black. On the other hand, there is no starch on Misty's socks, therefore the color of the socks did not change. Now you might be asking that why it can happen, why did it happen? साड़ी में कहाँ से starch होता है? Now if the teacher is wearing a sari, so definitely it is coming from one of the material like cotton, silk. Okay, तो इनका जो, if you talk about cotton is, तो ये कहाँ से होता है? इट इज़ अ प्लांट बेस्ड मटीरियल.
कॉटन क्या है? कॉटन आपका प्लांट बेस्ड है. So definitely it can show that property. It can contain a starch. Now next question. Why are millets considered a healthy choice of food? Millets को हम सुपर फूड्स भी कहते हैं. ठीक है, we call them as superfoods as well. Can eating just millets suffice for the nutritional requirements of the body? Discuss. तो मिलेट्स को हम हेल्दी चॉइस तो मानते हैं, लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ मिलेट्स को कंज्यूम करने से हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाएगी? तो let us see. Millets are considered a healthy choice of food because of the numerous health benefits. They are good sources of vitamins, minerals like iron and calcium, and dietary fibers as well. That is the reason why they are called nutri cereals. Why they are called nutri cereals? क्योंकि ये ऐसे सीरियल्स है जिसमें हमें सारे न्यूट्रिशनल कंटेंट्स जो है आराम से मिल जा रहे हैं. हमें वाइटामिन भी मिल रहा है, मिनरल्स भी मिल रहा है, हमें डाइटरी फाइबर्स भी एज वेल एज मिल रहे हैं. तो येस वी कैन से कि ईटिंग जस्ट मिलेट्स कैन सफिस फॉर द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी एज दे आर मल्टी सीरियल्स and also contribute to a balanced diet. Okay, next question. You are given a sample of a solution. How would you check the possibility of it being an iodine solution? तो ये जो स्टार्च टेस्ट है आपके इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं. ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं 3-4 क्वेश्चन से वो सिर्फ स्टार्च टेस्ट पर थे. सो यू नीड टू बी वेरी श्योर अबाउट इट कि आप ये सारे क्वेश्चंस कर लो. नथिंग फ्रॉम द स्टार्च टेस्ट इज गोइंग टू कम आउट ऑफ दिस exercise questions. That is the reason why I did not explain it to you in the experiment while explaining the chapter. But if you want me to explain all the experiments, so you can tell me. I'll bring another lecture when I'm just explaining you all the experiments that is given. So if you wish for it, so you can write it down it in the comments and then I can give you the video. So let's discuss the answer right now. We can check whether the given solution is iodine solution by adding again small amount of starch add kiya. If the solution on adding starch turns blue black, then it is an iodine solution. If the solution does not turn blue black, then the solution is not an iodine solution. ठीक है, तो हमें चेक करना था कि हमें जो सोल्यूशन मिला है वो आयोडीन सोल्यूशन है कि नहीं है. तो हम क्या करेंगे, हमने उसमें थोड़ा सा स्टार्च डाला. स्टार्च डालने पर आयोडीन सोल्यूशन ब्लू ब्लैक हुआ तो फिर डेफिनेटली वो आयोडीन सोल्यूशन है, और अगर नहीं हुआ तो फिर वो एक आयोडीन सोल्यूशन नहीं है. ओके, so with this we have finished with our chapter. We have completed the chapter mindful eating. Okay, so now if you want me to discuss the experiments, अगर आप चाहते हो कि मैं experiments more important questions लेकर के आऊँ, सो यू कैन कॉमेंट इट डाउन. तो फिर मैं इस पर भी आई विल गिव यू अनदर लेक्चर वेयर आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल द एक्सपेरिमेंट्स एंड आई एम गिविंग यू मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्पेशली. ठीक है, सो नाउ यू कैन कंप्लीट योर एक्सरसाइजेस with the lecture that is being provided to you. Okay, so thank you.